حکومت نے بجلی اور گیس کی غیر رجسٹرڈ کمرشل اور صنعتی صارفین کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ نان فائلر صارفین پر 17% اضافی ٹیکس عائد کر دیا۔ ایف بی آر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹیکس ریٹرن نہ بھرنے والے تاجروں اور صنعت کاروں پر کڑا وقت آ گیا۔ حکومت نے بجلی اور گیس کے نان فائلرز، کمرشل اور صنعتی صارفین پر ٹیکسوں کا اضافی بوجھ ڈال دیا۔ نان فائلرز، کمرشل اور صنعتی صارفین کے بلوں پر 5 سے 17% اضافی ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ 10,000 روپے ماہانہ بل پر 5%، 10 سے 20,000 روپے ماہانہ بل پر 7% اور 20 سے 30,000 روپے ماہانہ بل پر 10% اضافی ٹیکس لگے گا۔ 30 سے 40,000 روپے ماہانہ بجلی اور گیس کے بل والے کمرشل صارفین پر 12%، 40 سے 50,000 روپے ماہانہ بل پر 15% اور 50,000 روپے سے زیادہ بل پر 17% اضافی ٹیکس لگا دیا گیا۔ ایف بی آر نے صنعتی اور کمرشل صارفین پر اضافی ٹیکس کا SRO جاری کر دیا۔ بجلی بلوں میں 5 سے 35% تک ایڈوانس ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ خبر سنتے ہی شہریوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہتے ہیں آئے روز ٹیکسوں کی بھرمار اور مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مبشر حسن نقوی۔ بجلی بلوں میں ایڈوانس ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد شہریوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ کہا حکومت نے مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ اضافی ٹیکس عوام پر بم گرانے کے مترادف ہے۔ انجمن تاجران اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے اور گزشتہ روز جو پیٹرول کا ریٹ بڑھایا ہے اس کو بھی ہم نے مسترد کیا اور اس کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ پہلے ہی تاجر اتنے پریشان ہیں کووڈ کی وجہ سے، کاروبار ٹھپ ہے، بالکل کاروبار نہیں ہے، انڈسٹری بند ہے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، بے روزگار لوگ ہو رہے ہیں، لہٰذا اس اضافے سے مزید لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ شہریوں نے کہا تبدیلی کی دعوت دار حکومت کے عوام پر مہنگائی کے وار جاری ہے۔ چند روز قبل بھی بجلی کی قیمت میں 1 روپے 38 پیسے اضافہ کیا گیا۔ پٹرول، آٹا، گھی، چینی اور آئے روز اشیاء خور و نوش کی قیمت میں اضافہ ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعظم صاحب ساری طرف اپیل ہے کہ جہاں تسا بجلی دے بل ودائے ہیں اس تے مہربانی کرو تے انہاں کام کیتا جاوے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجلی بلوں پر ایڈوانس ٹیکس عائد کرنے کے فیصلے کو واپس لیا جائے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، جھنگ۔ مہنگائی مہنگائی ہائے رے مہنگائی۔ مہنگائی کے سونامی نے عوام سے دال روٹی بھی چھین لی۔ ایشیا کی سب سے بڑی غلہ منڈی میں صرف 30 نہیں بلکہ 15 دن بعد ہی نئی ریٹ لسٹ جاری ہونے لگی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مہنگائی نے ہر سطح پر عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ چنا سفید موٹا پرچون میں 2 روپے مہنگا ہو کر 172 روپے کلو ہو گیا۔ دال ماش 5 روپے مہنگی ہو کر 198 اور دال مسور بریک 8 روپے مہنگی ہو کر 183 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ قیمتوں میں اضافے پر شہریوں نے پریشانی کا اظہار کیا۔ کسی کو نظر نہیں آ رہی، یہاں پہ جو غریب ہے مر رہا ہے، کسی کو کوئی غریب کا کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں پہ دال، چینی، گھی ہر 15 دن بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد جو پٹرول ہے ہر 15 دن بعد 5 روپے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا میں غریب کوئی نہیں چھوڑوں گا، غریب کو تو وہ مار رہا ہے۔ اب میں جو پرسن کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ جتنی سیلری ہے، سیلری تو بڑھ نہیں رہی، مہنگائی بڑھی جا رہی ہے۔ ایشیا میں 11%، 12% سے آبادی بڑھ گئی ہے لیکن سیلری وہاں پہ ہی ہے۔ اب بزنس پرسن ہے وہ بھی رو رہا ہے، اب جو سیلری پرسن ہے وہ کیا کرے گا؟ جو منیمم 17-18 اس کی سیلری ہے وہ اس میں کہاں سے مینیج کرے گا؟ اب ایک بات بتائیں، اس نے بولا تھا کہ جی میں غریب رہنے کو نہیں دوں گا، واقعی اس نے مار دیا غریبوں کو۔ اور دوسری بات کہ جی اس فلاں ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ سائیکل پہ آتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے سائیکل پہ آنا تھا کہ وزیر اعظم نے سائیکل پہ آنا تھا۔ تو ہماری ان سے یہ پرزور اپیل ہے کہ 20,000 کریں، 25,000 کریں، ہمیں اس میں ایک فیملی کا بجٹ بنا کے دیں۔ 8 مہینوں کے دوران قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کیا گیا۔ چنا سفید موٹا 65 روپے مہنگا ہو کر 172 روپے اور چنا سفید بریک 43 روپے بڑھ کر 135 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ چنا سفید موٹا 9 روپے مہنگا ہوا اور قیمت 124 روپے کلو ہو گئی۔ چنا کالا باریک 13 روپے مہنگا ہو کر 118 اور دال چنا باریک 15 روپے مہنگی ہو کر 120 روپے کلو ہو گئی۔ نائب صدر چیمبر رانا ایوب اسلم منج کہتے ہیں ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ہر چیز مہنگی ہوگی۔ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو یہ اوپر جاتے ہیں، جب نیچے آئے گا تو نیچے آ جائیں گی۔ ابھی بجلی کا اشر دیکھ لیں کیا کیا ہے انہوں نے، پیٹرول کا دیکھ لیں کیا ریٹ کر دیے ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں بڑھتی ہیں، دالوں کے علاوہ اور چیزیں باقی چیزوں میں کمی آئی ہے، وہ بھی 10 گنا بڑھ گئی ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں قیمتیں غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی اور غریب کے لیے دال کھانا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں گھر بنانا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہونے لگا۔ سریے کی قیمت میں فی ٹن مزید 5,000 روپے اضافہ۔
बिल्डर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान भी शदीद परेशान दिखाई देने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं फजील अहमद। महंगाई पर काबू कौन पाएगा, किसी को कुछ पता नहीं। अपना घर बनाना एक ख्वाब बनकर रह गया। बिल्डिंग मटेरियल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरिया की कीमत में मजीद 5,000 रुपए का इजाफा हो गया। सरिया 1,80,000 रुपए से फी टन महंगा होकर 1,85,000 रुपए पर पहुंच गया। ठेकेदार कहते हैं घर बनाना तो मुश्किल हो गया, साथ हमारा कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस 40 दिनों के टेन्योर के अंदर 35% कीमत बढ़ी है स्टील की। आज 1,85,000 रुपये टन हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब गरीब आदमी 50 लाख घरों की तो बहुत दूर की बात है कि गरीब आदमी भी कोई घर बना सके। सरिया 180 रुपए फी किलो से बढ़कर 185 रुपए किलो हो गया। बिल्डर्स कहते हैं कारोबार से मुंसलिक हर फर्द परेशान है, बजाय कीमत कंट्रोल होने के बढ़ती जा रही है। ये तो एक बहुत ही तकलीफ दे मामला है। ये सिर्फ ये बात नहीं कि इस सरिया महंगा होने से सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग पर ही असर पड़ेगा, इस कंस्ट्रक्शन पर, इसका हर चीज़ पूरे माशरे पर असर पड़ रहा है। जो ऐसे लोग हैं जो सारी उम्र ख्वाहिश करते रहे कि काश के हमारा घर हो, मतलब कोई मुलाजम है या इतना नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो भी प्लान नहीं कर सकते, तो वो सारे बेचारे रह गए, बल्कि अब तो सोच नहीं सकते। घर बनाना मिडिल क्लास के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि एक ख्वाब बनकर रह गया है। मटेरियल की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी मुतासर हो रहा है। कैमरामैन अली हसन के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, फैसलाबाद के रिक्शा ड्राइवर्स का अलामती एहतजाज। GTS चौक में मौजूद रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पेट्रोल महंगा हुआ लेकिन सवारी 10 रुपए से जायद किराया देने को तैयार नहीं है। हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत मुखालिफ अलामती मुजाहरा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से दिहाड़ीदार तबका पिस रहा है। इस वक्त तमाम आवाम जो है वो पिसी हुई आवाम है, खासकर रिक्शे वाला, दिहाड़ीदार, ट्रांसपोर्ट के तमाम वर्कर जो हैं उनका कोई हाल नहीं है। यकीन करें अगर 500, 700, 800 रुपया कमाते हैं तो 1,000 का चलान हो जाता है। अगर चलान भुगतते हैं तो बिल आ जाता है, बिल आ जाता है तो फिर गाड़ी खराब हो जाती है। GTS चौक में होने वाले मुजाहरे में सदर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एसोसिएशन मियां शहबाज भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने कहा कि पेट्रोल महंगा हुआ लेकिन सवारी 10 रुपए से जायद किराया देने को तैयार नहीं है। पेट्रोल कम अज कम पेट्रोल सस्ता करें, जो रिक्शे पे गरीब आदमी सफर करता है, और जब पेट्रोल सस्ता होगा तो किराया भी सस्ता होगा। और मोबाइल है जो ऑयल चेंज करते हैं वो 360 रुपए का डब्बा हो गया, पौना लीटर का। GTS चौक में मौजूद रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सदर शराफत खान खटक कहते हैं पेट्रोल महंगा होने के बावजूद किराए वहीं रहते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फजील अहमद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सदर ऑयल टैंकर एसोसिएशन शराफत खान खटक कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक महंगी हुई मगर हमारे किराए नहीं बढ़ाए गए। इन हालात में कारोबार करना नामुमकिन हो चुका है। ओगरा ने 1 रुपये समरी भेजी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 रुपये बढ़ा दी, और हमारे ऑयल टैंकर्स के जो फ्रेट हैं वो फिक्स हैं, और उसकी जो एक फार्मूला उन्होंने तरतीब दिया हुआ है, जिस तरह ये इंक्रीज़ करते हैं रेट उसी तरह ये फ्रेट जो है ना इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन इसके बरक्स वो जो फ्रेट के इंक्रीज़िंग की जो रेशो है वो ना होने के बराबर है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मेंबरान कहते हैं महंगाई से मुश्किलात पेश आ रही हैं, गाड़ियों के पार्ट्स भी महंगे हो चुके हैं। टायर्स, स्पेयर पार्ट्स, मोबाइल ऑयल के रेट्स जो है ना वो आसमानों से उनकी कीमतें बातें कर रही हैं, और हमारे लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और कारोबारी सूरत हाल ये है कि कारोबार पहले से निस्फ हो चुके हैं। ऑयल टैंकर्स मालकान की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोल पंप मालकान की कमीशन बढ़ाकर किराए भी बढ़ाए जाएं ताकि कारोबार जारी रखना आसान हो। कैमरामैन अली हसन के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अलाउंस में 25% इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन जिला कौंसल चौक में सरापा एहतजाज। कहा इजाफा ना किया गया तो लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर भी मुजाहरा करेंगे। और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। सरकारी मुलाजमीन का जिला कौंसिल के सामने एहतजाज। मुलाजमीन ने एहतजाज के दौरान कहा कि तमाम महकमों को 25% अलाउंस मिलता है, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन महरूम हैं, हालांकि काम सबसे ज्यादा हमें करना पड़ता है, हर मुहिम में पेश रहते हैं। वफाक ने स्पेशल अलाउंस महंगाई की तनासब 25% जारी किया।
इन लोगों ने भी जारी किया, लेकिन उन डिपार्टमेंट का जो पहले ही मराज याफ्ता लोग हैं। हमारे बल्दियाती अदारे फैसलाबाद में अरकानी असम्बली पर फंड्स की बारिश होने को तैयार। 17 अरकानी असम्बली को 9 अरब 8 करोड़ रुपए मिलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 7 MNAs को 35 करोड़ रुपए की स्कीमें मिलेंगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हुकूमती अरकानी असम्बली को 39 करोड़ रुपए के फंड्स जारी होंगे। बिजली गैस तो मिलेगी, सीवरेज, पानी, नाली सॉलिंग और गली मोहल्लों के मसाइल भी हल होंगे। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद के जो इलाके बिजली गैस से महरूम हैं, जहां पानी नहीं पहुंचता या सीवरेज के मसाइल हैं, इनके हल की उम्मीद पैदा हो गई है। PMA ने 350 मिलियन SAP 4 प्रोग्राम के तहत और फी प्रोविंशियल पार्लियामेंटेरियन 390 मिलियन, ये पैकेज अभी ऐलान हुआ है, 2 हफ्ते ही हुए हैं। हम स्कीमें उनसे ले रहे हैं, जल्द से जल्द हम इस पैकेज को फाइनल कर लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 7 MNAs को अपने हलके में 35 करोड़ रुपए तक के मंसूबे मुकम्मल करवाने के लिए पैसे मिलेंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिला के तमाम हुकूमती अराकीन असम्बली को 39 करोड़ रुपए के फंड्स मिलेंगे, जिससे गली मोहल्ले के मसाइल भी हल होंगे। मैं तो यही कहूँगा, बहुत अच्छी बात है कि पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर, हमारे अखराजात पर लगने चाहिए, गली मोहल्लों पर, जहाँ अपना सड़कों पर लगने चाहिए। खुशी हो रही है कि पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। मज़ा तां कि रोड ते लगन, ठीक है, रोड बनन, उस तो बाद सीवरेज का मसला हल होवे, ठीक है। उस तो बाद फिर यह बड़ी खुशी है कि फैसलाबाद पैसे ना मिल रहे हैं कि काम के मामले दे विच ना इस्तेमाल होण, मज़ा तां है। आइंदा 15 रोज में अराकीन असम्बली अपने हलके की स्कीमें इंतजामिया को जमा करवाएंगे। जिला इंतजामिया और दीगर इदारे भी इन फंड्स के लिए मंसूबों की तजवीज़ देंगे। हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए फंड्स की एलोकेशन तो कर दी गई है, मगर देखना अब यह है कि मंसूबों के ऊपर काम कब शुरू होता है और इनकी तकमील कब मुमकिन होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं चिन्योट के शहरियों के लिए खुशखबरी। झुमरा रोड पर 167 किनाल अराजी पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आइंदा माह इफ्तिताह करेंगे। देखते हैं बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। जुमरा रोड पर वाक़ औकाफ की जमीन जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को मुंतकिल कर दी गई। औकाफ और रेवेन्यू अफसरान के हमरा सदर बार मलक फतेह शेर खोखर ने जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी बदर मुनीर एडवोकेट के हमरा जगह का दौरा किया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने औकाफ की 167 कनाल अराजी का कब्जा ले लिया है। जुडिशल कम्प्लेक्स 167 कनाल 1 मरले का जो म्यूटेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ये नाम ट्रांसफ़र हो चुका है और इसका पोजेशन भी बाकायदा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को ट्रांसफ़र हो गया है और इंशाअल्लाह ताला विद इन मंथ इस पे जो है वो तामीराती काम के हवाले से भी प्रोग्रेस होगी। जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी बदर मुनीर एडवोकेट का कहना था, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुलाकात में इफ्तिताह के फौरी बाद तामीर मुकम्मल करवाने की यकीन दहानी करवाई है। चीफ जस्टिस साहब के पास मुलाकात में फंड्स के हवाले से था, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे फंड्स चीफ साहब के पास मौजूद, हमारे फंड में मौजूद पड़े हुए हैं और जैसे ही ये जो इफ्तिताह होगा चीफ साहब आगे करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह साथ ही इसकी तामीराती काम जो वो स्टार्ट हो जाएगा। दौरा के मौका पर समाजी शख्सियत सैयद नूरुल हसन शाह और दीगर वकाला भी सदर बार और जनरल सेक्रेटरी के हमरा थे। जुडिशल कम्प्लेक्स के क्याम से बर वक्त और सस्ते इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। सरकारी मुलाजमीन की सीटें बढ़ने की बजाय सुकड़ने लगी। 34,000 असातिज़ा की भर्तियों का मंसूबा मनसूख। फंड्स की अदम दस्तयाबी आड़े आ गई। पहले से भर्ती असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए फंड्स नहीं, नई भर्तियां नहीं कर सकते। महकमा तालीम हुकाम का मौक़िफ़। उधर महकमा सेहत की भी 1200 खाली असामियां खत्म करने की तैयारियां। महकमे के फैसले से काबीना को आगाह कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। रोजगार की तलाश में नौजवानों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस 34,000 असातिज़ा की भर्तियों का मंसूबा मनसूख कर दिया। महकमा तालीम का कहना है कि पहले से भर्ती असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए फंड्स दस्तयाब नहीं है। ऐसी सूरत हाल में नई भर्तियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। भर्तियाँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होनी थी। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने भी 1200 खाली असामियां खत्म करने का फैसला कर लिया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने फैसले से काबीना को आगाह कर दिया है। 300 ड्राइवर्स और 140 हकीमों समेत रूरल हेल्थ इंस्पेक्टर्स की 320 असामियों को खत्म किया गया है, जबकि फूड इंस्पेक्टर और माली डिस्पेंसरीज की असामियां भी खत्म की गई हैं। पंजाब हुकूमत असामियां खत्म करने की हतमी मंजूरी देगी। तालीमी तरक्की की दावेदार हुकूमत सरकारी कॉलेजेस में 20% से ज्यादा असातिज़ा की खाली सीटों पर भर्तियां न कर सकी। सरकारी कॉलेजेस में मंजूर शुदा सीटों की कुल तादाद 24,000 है, जिनमें से 6,000 के करीब सीटें ताहाल खाली हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का इस हवाले से कहना है कि खाली पोस्टों पर वक्फे वक्फे से भर्तियां की जाएंगी।
कंप्यूटर भी पटवारियों की ताकत को कम न कर सका। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। रवा साल एक भी नया मौजा ऑनलाइन ना हो सका। तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। साइलिन को फिर पटवारियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। साइलिन ने कहा तमाम मौजाजात की कंप्यूटराइजेशन होनी चाहिए, जहां कहीं मसाइल हों उनका हल निकालना चाहिए ताकि प्रॉपर्टी का काम बेहतर हो सके। एक ही छत तले तमाम काम होने चाहिए। शहरियों को फर्द के हसूल के लिए पटवारियों और अराजी रिकॉर्ड सेंटरों के हसूल पर बेयारो मददगार छोड़ा गया है। कल आए सी तो कल इन्होंने पूछा कि साहब कितने फर्द कैंसल करवानी सी, पिछे ब्याज की फर्द ली सी। उन्होंने कहा जी साहब छुट्टी ते कल आउणगे। अज आए देखिए जी साहब छुट्टी ते ये नहीं कोई दसदा कि साहब छुट्टी किन्ने दिन दी ते। मसला तो फर्द ली सी, जे फर्द लैनी सी दोबारा क्योंकि सौदा किया सी किसी ने, उदों को पैसे नहीं बने तो दोबारा फर्द लैनी सी, फर्द कैंसल करवा के ब्याज दी। अथॉरिटी हुकाम का कहना था काम जारी रहता है मगर इश्यूज सामने आते रहते हैं जिस वजह से बाज़-औक़ात काम सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। शहरियों ने कहा अगर काम में बेहतरी लाई जाए तो इससे रेवेन्यू का काम बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। महकमा सेहत से बरतरफ हुआ मगर CDC सुपरवाइजर पर भी बाज ना आया। जाली भर्तियों में मुलव्विस निकल आया है। CEO हेल्थ ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। आपको बताएं महकमा सेहत से बरतरफ हुआ मगर CDC सुपरवाइजर फिर भी बाज ना आया। जाली भर्तियों में मुलव्विस निकल आया। CEO हेल्थ ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बुनियादी मरकज़ सेहत 433 में सैनिटरी, पेट्रोल और कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट पर आशिर और अरसलान काम कर रहे थे, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC ने दौरान विजिट पकड़ा क्योंकि दोनों नए मुलाजिम थे। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा के मुताबिक कोई नया मुलाजिम भर्ती नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एक मुलाजिम CEO हेल्थ और दूसरा DHO के जाली दस्तखत करके भर्ती के ऑर्डर निकल आया था, जिसके बाद इंक्वायरी कमेटी में सामने आया कि उमर CDC सुपरवाइजर, जिसे पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका है, शहरियों से फ्रॉड किया है, जिस पर CPO को मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की सिफारिश की है। ट्रेन में सफर करने वाले हो जाएं होशियार। बगैर वैक्सीनेशन के पाबंदी है बरकरार। सर्टिफिकेट है लाजमी करार, नहीं तो करना होगा लंबा इंतजार। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ तफसीलात से आगाह करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। रोबो टैक्सिंग में रेल का सफर कोरोना वैक्सीनेशन के साथ मशरूत हो चुका है। जो वैक्सीन करवाएगा वही ट्रेन पर जाएगा। टिकट लेने के लिए मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं वो मैसेज भी दिखा सकता है। पहले पूछते हैं भी तुहाडे को कोरोना वायरस वाला सर्टिफिकेट है, मास्क वगैरह पहन के अंदर दाखिल होना, तो 75% रिजर्वेशन कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर का कहना था जिन शहरियों ने वैक्सीन नहीं करवाई इन्हें टिकट्स जारी नहीं कर रहे। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था वैक्सीन कार्ड ना होने के बायस ओपन टिकट पर सफर कर रहे हैं। मैं टिकट करवान आया सी जी, वो कह रहे अपना वैक्सीन कार्ड लेके आओ तो नहीं तो टिकट नहीं मिलना, तो ओपन टिकट 'ਚ मैं सफर कर रहा हूँ। मैं अपना वैक्सीन का कार्ड दिखाया उन्होंने मैंने टिकट दे दिता। मेरे नाल दे कई मुसाफिर आ जिन्होंने कोल नहीं कार्ड हैगा, उन्होंने टिकट नहीं मिली हैगी, ओपन टिकट से सफर करन दे। स्टेशन मास्टर का मजीद कहना था कि रहमान बाबा, पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत और शालीमार में 70% बुकिंग कर रहे हैं, जबकि 30% नशिस्तें खाली छोड़ रहे हैं। बुकिंग करवानी है तो वैक्सीनेशन लाजमी करवानी होगी। वैक्सीनेशन नहीं होगी ट्रेन में सफर तो कर सकेंगे मगर ओपन टिकट पे। कैमरामैन मोहम्मद जवाद के साथ तैयब सैफ, टोबा टैक्सी। महकमा सेहत का 9 माह से 15 साल तक के 33 लाख बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाने का फैसला। खसरा, रूबेला और पोलियो से बचाव के लिए 15 से 27 नवंबर तक खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। तफसीलात जानते हैं ज़िदार हुसैन की इस रिपोर्ट में। पंजाब ने बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया। 33 लाख बच्चों को जिला भर में हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। CEO डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिपरा ने कहा 15 से 27 नवंबर तक मुहिम जारी रहेगी। आज हमारी WHO की प्रोवेंशियल टीम हमारी ट्रेनिंग्स को मॉनिटर करने के लिए आई हुई थी। 15 नवंबर से 12 दिन की मीजल रूबेला कैंपेन स्टार्ट होगी, जिसके लिए हम माइक्रो प्लानिंग डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद हमारी सारी ट्रेनिंग्स होंगी। इसमें तकरीबन हमारे 33 लाख के करीब टारगेट है और उसमें तकरीबन 2500 के करीब टीमें गली मोहल्लों और सेंटरों में जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। मुलाजमीन को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। 2500 टीमें जिला भर में काम करेंगी और बाद ये रूटीन वैक्सीन में शामिल हो जाएगी। अपने किट स्टेशन बना के कम्युनिटी में जाके वैक्सीनेशन करेंगी और इस दौरान वो अपना सारा टारगेट अचीव करेंगी। ये 9 महीने से लेके 15 साल की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं और उसके बाद ये हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन में शामिल हो जाएगी।
محکمہ صحت نے کہا ٹیموں کے ساتھ تعاون کیا جائے اور والدین بچوں کو ویکسین لازمی لگوائیں تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ کیمرہ مین محمد قمر بھٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کورونا کے خاتمے کے لیے متحرک، 15 سال سے زائد عمر کے طلباء کو ویکسین لگانے کا عمل شروع، سرکاری اسکولز میں موبائل ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیے گئے۔ جہانگیر اشرف کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ویکسینیشن کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ گورنمنٹ ایم سی ہائی سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ سمیت ضلع بھر کے 20 اسکولوں میں کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیے گئے، جہاں 15 سال سے زائد عمر کے طلباء کو ویکسین کی جائے گی۔ ہمارے اسکول میں آج سے ویکسینیشن کا عمل شروع ہے، جس سے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہمارے بہت سے بچوں کو ویکسین لگ چکی ہے، اور جس سے ہمیں امید ہے کہ اب لاک ڈاؤن نہیں ہوگا اور تعلیمی ادارے مسلسل کھلے رہیں گے۔ ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، جس سے کہ آج ہمارے اسکول کے بیچ میں ویکسینیشن کا پروگرام تھا اور ہم نے ویکسینیشن کروا لی۔ اب ہمیں امید ہے کہ آگے ہمارے اسکول نہیں بند ہوں گے مسلسل۔ پرنسپل راؤ محمد اقبال کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن سے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی، جبکہ طلباء کو وائرس سے بھی محفوظ بنایا جا سکے گا۔ جب تعلیمی ادارے کھلنے سے پہلے ہم نے ٹیچرز کی ویکسینیشن کروا لی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا تھا ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ بالکل یعنی کہ محفوظ ہیں اور بچے بھی محفوظ ہوں گے۔ اب کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ 15 سال سے لے کے 18 سال کے درمیان کے بچوں کو جو ہے ویکسینیشن کرایا جائے تاکہ ہمارا جو ماحول ہے وہ بالکل محفوظ ہو بچوں کے لیے۔ طلباء نے ویکسینیشن شروع ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ اب اسکول مزید بند نہیں ہوں گے۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اخوات فاؤنڈیشن کا احسن اقدام، عوام کو بلا سود قرضوں کی فراہمی جاری، محکمہ انہار اور کمسٹر کمپلیکس میں چیک تقسیم کرنے کی تقاریب کا انکار، 200 خاندانوں میں 85 لاکھ مالیت کے چیک تقسیم کیے گئے۔ کمشنر ثاقب منان، سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل علی اکبر، سابق چیئرمین ایپٹما حبیب گجر اور صنعتکار ظفر علی گورسی نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ زیر اہتمام بلا سود قرضوں کی فراہمی جاری ہے، 200 خاندانوں میں 85 لاکھ کے چیک تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر سپرنٹنڈنٹ جیل علی اکبر گجر کا کہنا تھا کہ اخوت پلیٹ فارم غریبوں کی مدد کے لیے مشہور ہو چکا ہے، لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ سابق چیئرمین ایپٹما حبیب گجر نے بھی بلا سود قرضوں کی فراہمی کے اقدام کو سراہا۔ ڈاکٹر امجد صاحب کے ویژن کے ساتھ یہ آج کا چھوٹا سا فنکشن تھا، جو کہ تقریباً مہینے میں 4 دفعہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ آپ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ قرض حسنہ دیا جاتا ہے، اور یہ ادارہ دن بر دن اللہ کی رحمت سے بہت ترقی کر رہا ہے۔ مجھے جو سب سے زیادہ خوشی یا اطمینان یا عزت جس طرح آج میں محسوس کر رہا ہوں، یقین مانیے پہلے کبھی نہیں محسوس کی کہ آج میں اس کنبے کا بطور حصہ یا بطور ایک ورکر میں آج شامل ہوا ہوں۔ دوسری جانب کمشنر کمپلیکس سے ملحقہ مسجد میں 40 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں ڈویژنل کمشنر ثاقب منان، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر حیدر علی اور ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی تہمینہ ریاض نے شرکت کی۔ کمشنر نے کہا کہ فاؤنڈیشن جتنے بھی قرضے مہیا کرتی ہے اس کی 100% واپسی ہو رہی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے علاوہ بھی اخوت کے فلاحی منصوبوں سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں۔ اور ٹوٹل اب تک یہ 165 ارب روپیہ تقسیم کر چکے ہیں، کوئی ان کا ڈیفالٹ نہیں ہے، پلس ان کے بہت سارے نئے پروگرام بھی آ گئے ہیں، جس میں ایک تو یہ جو بلا سود قرض ہے۔ تقریب میں شریک مہمانوں نے 200 خاندانوں کو 85 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے۔ چیک وصول کرنے والے افراد کاروبار سے ہونے والی آمدن سے اقساط ادا کر سکیں گے۔ کیمرہ مین شعیب اور رمضان مرزا کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41۔ صاف پانی کی فراہمی کا مشن، ایم این اے کیسر احمد شیخ نے RO واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فنکشنل کر دیا، کہا مختلف مقامات پر پلانٹ لگائے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں چنیوٹ سے بابر منیر کی یہ رپورٹ۔ ایم این اے کیسر احمد شیخ نے شہریوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی شروع کر دی، اپنے ڈیرا پر RO واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فنکشنل کر دیا۔ کہتے ہیں شہریوں کی صاف پانی نہ ملنے کی شکایات تھیں، جس پر واٹر پلانٹ کو اپ گریڈ کیا گیا۔ سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، RO پلانٹ میں 1 ٹن پانی گیلن ہوگا۔ ہم نے لیٹسٹ اس میں اور مشینری کا اضافہ کیا، اکوپمنٹ نیا لگوایا ہے اور اس کی کوالٹی کو بہت زیادہ امپروو کر دیا ہے تاکہ یہ لوگوں کے لیے صحت افزا ہو۔ اگلے مرحلے میں شہر میں مختلف جگہوں پر واٹر پلانٹ لگائے جائیں گے تاکہ شہریوں کو صاف پانی مل سکے۔ RO واٹر فلٹریشن کے افتتاح کے موقع پر امیدوار لیگی ٹکٹ ہولڈر سید اسد بخاری اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41، چنیوٹ۔ ٹیکو سنگھ کے نام پر ایک پارک بنا اور پھر شہر آباد ہوا، مگر انتظامیہ کی غفلت سے ٹیکو سنگھ کی یادگار سمیت پارک بدحالی کا شکار ہوا، جسے بحال کرنے کا کام تو شروع ہوا، مگر یہ پارک کیسے بنا اور ٹیکو سنگھ آخر تھا کون، اس پر رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف طیب سیاح۔ سنگھ کیا ہے، اس کا نام کیسے پڑا،
टेकू सिंह कौन था? आखिर उसने ऐसा क्या काम किया था कि आज वो तो नहीं है मगर उसका नाम अमर हो चुका है? आइए आपको बताते हैं। अंग्रेज दौर में रेल पटड़ी का जाल बिछा तो टोबा मंडी पर भी इसका स्टेशन बनाया गया। स्टेशन का नाम तजवीज करने पर कुर्रा फाल टेकू सिंह के नाम निकला, जो स्टेशन के साथ मुल्हिक पीपल के दरख्त के नीचे हर खास व आम को बिला तफरीक पानी पिलाता था। पानी के बड़े मटके, साथ में पानी का जोहड़ और दरवेश टेकू सिंह इस शहर की पहचान बन गए। पिछले 7-8 साल से पार्क का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। इसकी जो हालत है बहुत ख़राब हो चुकी है। तालाब में बिल्कुल पानी नहीं है और ये जो आपको ये जो जगह नज़र आ रही है ये बहुत हिस्टोरिकल जगह है। इस शहर का जो नाम है वो यहाँ से ही पड़ा था, टेक सिंह के नाम पे। ये जो जगह है इसकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है। टेकू सिंह की यादगार को महफूज करने के लिए इंतजामिया ने वहाँ पार्क बना दिया, मगर कुछ अरसा बाद वो पार्क बदहाल हुआ और लोगों ने आना छोड़ दिया और टेकू सिंह को भी भूलने लगे, जिस पर सिटी 41 ने हकाम बाला की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई तो बहाली का काम शुरू हुआ। ये बहुत अच्छा इंतजामिया का कदम है, इन्होंने काम करवाना स्टार्ट कर दिया है कुछ दिन से और 1 मंथ के अंदर अंदर ये पार्क उम्मीद है कि अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगा। टेकू सिंह का कुआं तो अब खुश्क हो चुका मगर उसकी यादगार बरकरार है, जबकि शहरियों ने इंतजामिया से टेकू सिंह के नाम से मंसूब तमाम यादगारों को असल हालत में बहाल करने का मुतालबा किया और साथ ही म्यूजियम बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। इस पीपल की घनी छांव में जब लू भी चलती थी तो ठंडी हो जाती थी और इस ठंडी छांव में बैठने के लिए लोग दूर दराज से आते थे और इसी छांव में एक टेकू सिंह बैठा होता था जो इन मटकों से पानी भरकर शहरियों को पिलाता था। मगर आज उस टेकू सिंह की याद को, उसकी यादगार का हाल जो है आपके सामने है, जहां पर पीपल का दरख्त तो मौजूद है, हवा भी मौजूद है